بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، حوالہ ہزارہ کے ساتھ آپ کا میزبان مہر سیما ایک بار پھر حاضر۔ ناظرین، حوالہ ہزارہ میں آج ہم موجود ہیں ضلع مانسہرہ میں ہم بات کریں گے یہاں پر مختلف جو جگہ ہیں، یہاں پر اگر ہم دیکھیں بنیادی مسائل کی بات، اسی طرح یہاں پر اداروں میں جس طرح کہ ہم بات کریں پولیس، اس طرح اسی حوالے سے صحت کے حوالے سے کوئی بھی ایشو جو بنیادی سہولیات ہے ہم جاننے کی کوشش کریں گے یہاں پر مانسہرہ میں۔ ہمارے ساتھ یہاں پر مانسہرہ کے ہی کچھ مقیم موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ مانسہرہ میں اگر پی ٹی آئی کی حکومت گزری، پچھلی نون لیگ کی حکومت گزری، کوئی بھی حکومت ہے تو جو منتخب نمائندگان ہیں وہ اس سے کتنے مطمئن ہیں۔ اور اسی طرح میں اگر بات کروں، ابھی میں یہاں سے آ رہا تھا، انٹرچینج سے میں نکلا تو میں نے روڈوں کی حالت دیکھی تو میں کہتا ہوں کہ کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی تھی۔ اسی حوالے سے مقامی لوگ ہیں، وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، انہیں سے بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ؟ شکر اللہ کا جی، الحمدللہ۔ مانسہرہ کے ہیں؟ جی مقامی ہوں، مانسہرہ مقامی کے جی۔ کیا سمجھتے ہیں مانسہرہ میں، ہزارہ میں اگر اتنی بڑی تبدیلیاں بھی آئی، حکومتیں آئیں، اچھا تو کیا مسائل ہیں یہاں پر؟ سر جی، مسائل جو ہیں وہ تو ہر بندے کو مطلب ہے سامنے ہے نا، ڈھکے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ اب جو عوام کو ریلیف دینا حکومتوں کا بنیادی حق ہے، پہلا فرض ان کا یہ ہے۔ ہمیں جو انفراسٹرکچر کے حوالے سے جو کچھ دے رہے ہیں نا وہ زیرو پہ ہے۔ اس کی جو زندہ مثال ہے، آپ یہ موٹر وے سے اترے ہیں نا، یہ روڈ ہے، یہ روڈ نہیں، یہ کھنڈرات بنا ہوا ہے، یہ ابھی کا نہیں ہے، میرے خیال میں 20 سال پرانا روڈ ہے۔ اس کے بعد پھر یہ موٹر وے چلا ہے تو موٹر وے تو کافی ٹائم سے بن چکی ہے۔ ہاں بن چکی ہے، 2 سال ہو گئے ہیں اس کے، میرے خیال میں 1.5 سال تو وہی ہوگا موٹر وے چلا ہے۔ اتنی رش ہے، اور اسپیشلی جو ڈیلی کے آنے والے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو اسکول لے کے آتے جاتے ہیں، رش میں پھنس جاتے ہیں۔ اور جو جہاں تک وی آئی پیز کا تعلق ہے وہ تو پروٹوکول میں نکل جاتے ہیں، ادھر بھی چلے جاتے ہیں، ادھر بھی چلے جاتے ہیں، ان کو تو کوئی ایشو نہیں ہے نا۔ اور اسی لیے میرے خیال میں ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ عوام کس تکلیف میں، کس کرب سے گزر رہی ہے۔ اور دوسری جو مہنگائی ہے حکومت نے لوگوں کے اوپر ڈالی ہوئی ہے، وہ تو سب مہنگائی کا تو اللہ ہی حافظ ہے۔ اچھا، جس طرح ابھی آپ بات کر رہے تھے یہااں پر روڈز کی بات کر رہے تھے، اور اگر مانسہرہ کی ہم بات کریں تو روڈز کی کیا حالت ہے؟ زیرو، نیل ہے۔ یہ مین، یہ تو بڑے بڑے روڈ یہاں سے کاغان ناران ٹور، یہ تو سی این ڈبلیو کے آتے ہیں نا، وہ تو ایک مکھی کے برابر ہے۔ اب این ایچ ہے جو ہے وہ ایدھا ہے۔ آپ ابتباد سے آئے نا شارع ریشم پر، یہ ہمارا ادھر ایک پلازا ہے، ختم نبوت پلازا، آگے بٹ پل سے تھوڑا سا پہلے، وہاں پہ انہوں نے گڑھا کھودا ہے، میرا خیال میں 10 فٹ چوڑا ہے اور 10 فٹ گہرا ہے۔ سال ہو گیا اس گڑھے کا، آپ گزرے نا وہاں سے، وہاں سال ہو گئے۔ آگے مین پل ہے جو جی بی کو اور اس کو کے پی کے کو آپس میں ملاتا ہے، بٹ پول، وہ تقریباً 2 سال سے اس میں گڑے پڑے رہے ہیں۔ اور ٹریفک کا یہ حال ہے کہ ہم جب شنکیاری جاتے ہیں نا تو سبزی منڈی سے لائن میں مہنگائی تو بات ہے ہی ہے۔ اوورال مانسہرہ میں بنیادی سہولیات کے حوالے سے کیا کہ کچھ بھی نہیں ہے جی، بنیادی سہولیات کچھ بھی نہیں ہے جی، کچھ بھی نہیں ہے جی۔ اسپتالوں میں جاتے ہیں، سوئی بھی باہر سے لیتے ہیں۔ ووٹ کس کو دیا؟ ووٹ پی ٹی آئی کو۔ پی ٹی آئی کو، لیکن ابھی پی ٹی آئی تبدیلی نہیں آئی مانسہرہ میں؟ تبدیلی، بہت بڑی تبدیلی آئی جی۔ عوام جو پہلے روٹی کھاتی تھی وہ روٹی بھی ان سے چھین لی گئی ہے، بس یہی تبدیلی آئی ہے جی۔ ہم بہت پریشان ہیں جی اس حکومت سے کہ غریب کا کوئی پریشانی حال نہیں ہے۔ ایک وقت کا کھانا کھاتے ہیں، ایک وقت کا نہیں کھا سکتے۔ بجلی کے بل ٹھیک آ رہے ہیں؟ بجلی کے بل جی، پہلے جب نواز شریف کی حکومت تھی تو 200-250 روپیہ بل آتا تھا گھر کا، ابھی ہم 12-13 ہزار، 8-8 ہزار، 2-2 ہزار، 5-5 ہزار روپیہ جمع کر رہے ہیں۔ یہ تبدیلی ہے جی بس۔ تو گیس ملتی ہے ابھی؟ سردی گیس نہیں ہے، گیس بالکل بند ہے۔ اور پیٹرول مل رہے ہیں؟ پیٹرول بھی نہیں ہے، پیٹرول بھی بند ہے جی۔ گاڑیوں کے کرائے جدھر 20 روپے کرایہ تھا، ابھی اس کا 50 روپیہ لیتے ہیں جی۔ اور روڈ بہت زیادہ ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہے۔ نون کی بات کرتے ہو یا پیپل پارٹی کی یا عمران کی، یہ سب چور ہیں، یہ سب بے ایمان ہیں، کوئی بھی نہیں ہے۔ غریب کا کوئی نہیں ہے، غریب کا ووٹ ملتا ہے ان کو، خان کا ووٹ نہیں ملتا، غریب کا ووٹ ملتا ہے۔ اور آ کر بیٹھ جاتے ہیں کرسی پر، غریب ان کے عہدے پہ جاتا ہے کہ چائے کا ست بھی نہیں کرتے، روٹی کا ست بھی نہیں کرتے۔ وہ غریب بیٹھے رہتے ہیں، زمین میں بیٹھے رہتے ہیں، ایک کرسی میں بیٹھے رہتے ہیں۔ مزدوری کی ہے، فوج کی نوکری کی ہے، وابڈے کی نوکری کی ہے، میں نہیں دیتا ہوں، سب کو ووٹ دیے۔ کیا ہوگا؟ دیکھیں آپ یہاں پر ہیں، اس عوام پھر آخر حکومت تو کسی نے اسی طرح مرے گی۔ یہ غریب ووٹ دیں گے 60-70 ہزار، خان جڑا نہیں دے گا۔ وہ غریب ووٹ پر کرسی پر بیٹھتا ہے، خان پر نہیں بیٹھتا۔ میں خان ہوں، میں 10 ووٹ دوں گا تو غریب چیک کرنا 50 ہزار ووٹ دیتا ہے۔ ابھی سمجھ
अभी भी जाकर किसी के उधर में जाकर गरीब बैठे हुए हैं, उनको चाय की सत नहीं करते। जी नाज़रीन, जिस तरह की यहाँ पर हमने आवाम से भी बात की जिन्होंने बुनियादी सहूलियात के हवाले से बात की, इस तरह नाज़रीन हम मानसरा में ही मौजूद हैं। आगे जाएंगे, मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। जी नाज़रीन, जिस तरह के अहवाले हज़ारा में आज हम मौजूद हैं मानसरा में, हमारे साथ एक्साइज एंड टैक्सेशन के यहाँ पर जो है इंस्पेक्टर मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं यहाँ पर गाड़ियाँ चेक हो रही हैं, लेकिन हम उनसे पूछना चाहेंगे कि अगर मानसरा का इलाका, यहाँ पर ज़ाहिर बात है कि जो ट्रैवलिंग होती है, अगर हम करें कश्मीर साइड, मुजफ्फराबाद, गिलगित साइड होगी, इस तरह कागान, नारान और यहीं से भी शाम साइड भी रास्ते जाते हैं मुख्तलिफ, तो इन इलाकों में ये गाड़ियाँ ट्रैवल करती हैं। तो यहाँ पर जो गाड़ियाँ आती हैं जिसमें चोरी की गाड़ियाँ भी होती हैं और क्या क्या यहाँ पर जो कार्रवाई होती है, उस हवाले से इंस्पेक्टर साहब ही बताएंगे। उनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, शुक्र। सबसे पहले अपना तारफ़ करवाइए। मैं इंस्पेक्टर रफ़ीज़ नाम है मेरा। बेसिकली मैं एबटाबाद से बिलोंग करता हूँ और आजकल एक्साइज पुलिस स्टेशन हज़ारा रीजन में तैनात हूँ। अच्छा, ये बताएं, यहाँ पर आप खड़े हैं तो किस किस्म की गाड़ियाँ यहाँ पर, कुछ ऐसी जो गाड़ियाँ आती हैं जो कि टेम्पर होंगी या चोरी शुदा होंगी, तो क्या कार्रवाई होती है? और आज तक अगर मैं इस पिछले महीने की बात करूँ तो कितनी कार्रवाई हो चुकी है? यहाँ पर बेसिकली हम खड़े होते हैं नारकोटिक्स के लिए। उसके अलावा हमारे पास टेम्पर्ड गाड़ियाँ भी यहाँ पर आती हैं और उसके अलावा नॉन कस्टम गाड़ियाँ भी काफ़ी सारी करवाई हैं। पिछले महीने भी यहाँ से 3-4 गाड़ियाँ इधर मानसरा इंटरचेंज से रिकवर हुई हैं। तो बेसिकली इस तरह होता है कि जो टेम्पर्ड गाड़ी है उसको हम यहाँ पर चेक करते हैं, उसका चेसिस से या उसके रजिस्ट्रेशन बुक से शनाख्त होती है उसकी, तो शक की बुनियाद पर हम लेके जाते हैं उस पर। फिर अपना फार्म हम जो हमारी FIR है वो हम उस पर चेक करते हैं। उसके बाद उसका फिर लीगल प्रोसेस स्टार्ट होता है। उसमें हम उसको FSL पेशावर के लिए भेजते हैं गाड़ी को, और उसका जो अगर रजिस्ट्रेशन बुक वगैरह मुतलका मसलन लाहौर की है तो लाहौर भेजते हैं, वहाँ से उसकी वेरिफिकेशन होती है। अगर दोनों सूरतों में अगर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन बुक बोगस साबित हो जाए या फिर अगर गाड़ी टेम्पर FSL में निकल आए तो हमारा सीजर एंड डिस्पोजल रूल है, उसके तहत गाड़ी फिर बाकी सरकार ज़ब्त हो जाती है। अच्छा इंस्पेक्टर साहब, ये बताएं, हज़ारा रीजन से आप देख रहे हैं जी जी, तो यहाँ पर ज़ाहिर बात है कि अगर कोई गाड़ी चोरी होती है किसी इलाके से भी तो वो वही रास्ते अख्तियार करते हैं जो कि गुंजान रास्ते हों, जहाँ पर शहरी ना हो, वो नाकों से बचने की कोशिश करते हैं। आपको फिर वहाँ पर ज़ाहिर बात है कुछ कंप्लेन होगी तो आप वहाँ पे नाका भी लगाते होंगे। जी जी। तो यहाँ पर आप क्या समझते हैं कौन से एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर ये रास्ते रूट्स जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं? ज़्यादातर कहाँ पर ये आपने गाड़ियाँ पर? ज़्यादातर जो है ये इस्तेमाल करते हैं, इंटरचेंजेस यूज़ करते हैं। मसलन अगर ये स्वात से आते हैं या पेशावर साइड से आते हैं तो ये इंटरचेंजेस पे ही उतरते हैं ज़्यादातर। तो मानसरा इंटरचेंज पे भी काफ़ी सारी हमारी रिकवरीज हैं। इसके अलावा जारी का इंटरचेंज पे भी रिकवरीज हैं। तो हमारे पास भी बहुत सारी गाड़ियाँ हमने इस तरह की पकड़ी हैं पेशावर में या और मुख्तलिफ जो हमारे रीजन्स हैं वहाँ पर हमने पकड़ी हैं जो रिकवर होती हैं। फिर उनका चेसिस ट्रेस होके तो मुतलका जो उनके लवाकिन हैं या मालिक हैं उनको मिली हैं। तो बस यही है कि आप पहले तो कोशिश करें कि अपनी गाड़ी को इतना सेफ़ रखें कि चोरी ना हो। लेकिन आपने इंस्पेक्टर साहब एक बात मैं यहाँ पे ज़रूर कहना चाहूँगा, मुझे भी अक्सर कालें आती हैं कि भाई जब गाड़ी हमारी गुम हो जाती है या रिकवर भी हो जाती है तो बड़ा लंबा प्रोसेस होता है। वो फिर अपनी गाड़ी लेने के लिए भी उसको बड़े चक्कर लगाने पड़ते हैं, सोर्सेज लगाने पड़ते हैं, पैसे देने पड़ते हैं। क्या इस पर कितनी ताकत है? पैसों वाला तो वैसे हम अगर अपने डिपार्टमेंट की बात करूँ तो इससे पहले मतलब इस तरह का इशू नहीं हुआ है पैसों वाला। हम तो इसी आवाम की खिदमत के लिए खड़े हैं। तो बहुत सारी गाड़ियाँ हमारे वेयर हाउस से फिर उनको लोगों को वापस हुई हैं, मुतलका जो थाने हैं उनके थ्रू मिलती हैं। और हमारा कोई इस तरह का नहीं, ये अब लीगल प्रोसेस बाज़ ऐसे हैं जो पूरे करने पड़ते हैं आपको। अच्छा, उसकी दूसरी बात मैं आखिर में ये पूछना चाहूँगा, ये अप्लाइड फार गाड़ियाँ जो होती हैं इनकी अक्सर जो होता है नंबर प्लेट्स उनकी नहीं होती, तो वो फैंसी नंबर प्लेटें ज़्यादा यूज़ होती हैं। जी जी। तो उसके लिए क्या करते हैं? फैंसी नंबर प्लेट्स लोग लगाते हैं, उसके लिए हमारा जो KPK में 5000 तक पेनल्टी है उसकी। अच्छा। हम पेनल्टीज़ करते भी रहे हैं, काफ़ी सारी हमने इस तरह के पेनल्टी की हैं। तो अप्लाइड फार जो गाड़ियाँ हैं वो उनका हमारा बाकायदा एक ऑपरेशन होता है, हम उनको लेके जाते हैं दफ्तर में और रजिस्ट्रेशन तक वो उधर खड़ी रहती हैं जब तक वो रजिस्टर नहीं होती है। हमारी कैंपेन बाकायदा चलती रहती है, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट स्क्वाड्स हैं वो करते हैं ये काम।
जी नाज़रीन, जिस तरह की बात हो रही थी यहाँ पर मसाइल की हमने बात की, तो हमारे साथ कुछ मंसरा की यहाँ की रहायशी ख़वातीन भी मौजूद हैं। उनसे भी पूछेंगे कि बुनियादी सहूलियात के हवाले से वो क्या कहना चाहती है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया, आपने इस टॉपिक को हाईलाइट किया। जनरल को किसी एक को आपने ना पकड़ा। यहाँ पे मानसा डिस्ट्रिक्ट के मैं लोकल सदर की बात करूँ तो यहाँ पे बहुत सारे मसाइल हैं। घर से निकलते गाड़ी में बैठते हैं, रोडों के हाल को मद्देनज़र रखते हुए हर चीज़ के मसाइल हैं। ट्रैफिक के मसाइल यहाँ पे हैं, रोडों के मसाइल, सड़कों के मसाइल यहाँ पे हैं। लोग हमेशा टारगेट करते हैं हमारे MNMPS को। मैं ये समझती हूँ कि इसमें जितने भी इदारे इन्वॉल्व हैं, NHA है वो उसकी ज़िम्मेदारी है। हमारे 3 मानसा डिस्ट्रिक्ट में 3 टूल प्लाजे हैं। अभी मैं यही बात कर रहा हूँ, अब टूल प्लाजा से बाहर निकला, यकीन कर रोड्स की मैंने हालत देखी। आखिर देखें सीज़न में यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं, बहुत बाहर से बहुत लोग ट्रैवल करके मानसरा से गुजरते हैं, तो अक्सर इलाकों में जाते हैं। अगर टूरिज़्म की मैं बात करूँ, डेवलप एरियाज़ यहाँ पे आगे बहुत है, तो क्या है आप समझती हैं कि रोड्स का काम अभी तक क्यों नहीं हो सका? कितनी हुकूमतें गुजर चुकी? ऐसा है कि हमने NHA से बात की कि यहाँ पे हम अपना टैक्स, अपने पेट को आधा काट के हम अपने टैक्स अदा करते हैं। आवाम टैक्स देती है तो वो टैक्स का पैसा कहाँ जाता है? अगर वो सड़कों पे नहीं लग रहा, वो किसी और चीज़ पे नहीं लगा, सबसे जो मेन मसला है वो सड़कों का है। हमारे रोड ख़राब हैं, ट्रैफिक रुक जाती है। सेहत के हवाले से ठीक है, अब क्या सेहत के हवाले से भी नहीं, तालीम के हवाले से किसी हवाले से ठीक ओवरऑल नहीं है। मतलब मैं आपको अपने सिविल हॉस्पिटल की बात बताऊँ, जो कि जिसके साथ 3 डिस्ट्रिक्ट लगते हैं, किंग अब्दुल्ला हॉस्पिटल, वहाँ के डॉक्टर्स का जो बिहेवियर है, सबसे पहले वहाँ के जो मसाइल है, अगर एक इंजेक्शन है तो वो भी जाके हमें बाहर से लेना पड़ता है। जी बिल्कुल, इस हवाले से बात हुई। लेकिन मुझे ये बताएं, जिस तरह भी आपने रोड्स की बात की, NHA, यहाँ पर मैंने देखा कि अंदरूनी शहर की रोड भी हुई हालत है। मैन अगर हम बालाकोट साइड पे जाते हैं और ज़िला मानसरा की बात करें, सारे रोड जो हैं वहाँ पर हालत ज़ार ठीक। तो ये बताएं कि यहाँ पर आप आखिर जितनी हुकूमतें गुजरी, तब्दीली जिस तरह की अभी इमरान खान की हुकूमत आई, इससे पहले नून लीग की हुकूमत थी, इतने बड़े बड़े नाम गुजरे इस मानसरा से, तो क्यों नहीं हो सके? क्या वजह है? मसला ये है, वोट तो आप लोग ही, मुंतखब तो आप लोग ही करते हैं। बिल्कुल, देखें मसला ये है कि हम वोट लेने के दिन जब आते हैं तो हम जी और तू, जब हम इलेक्शन जीत जाते हैं तो हम जाके इस्लामाबाद में अपने घरों में AC ऑन करके हम अपने नंबर बंद करके सो जाते हैं। हमें पता होता है मैंने किसी को नहीं दिया। मैं इस बात की मुझे बहुत प्राउड है कि मैंने PTI को वोट नहीं दिया और मुझे बहुत फार महसूस हो रहा है इस बात पे। जब हम अपने मसाइल के लिए खुद धक्के खा रहे हैं तो हम इनको क्यों वोट दें? और इनको इस चीज़ का एहसास करना चाहिए, हमारे MNMPS को करना चाहिए कि हम लोग आपके जब इलेक्शन के दिन आते हैं, हम लोग आपको सपोर्ट करते हैं, हमारे लाए हुए नुमाइंदे आप लोग हमारे मुलाजिम हैं, आपको 24 आवर्स हमारे लिए अवेलेबल होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता। हम अपनी DCSE की बात करें, हम अपनी पुलिस डिपार्टमेंट की बात करें, हर जगह करप्शन है। उसकी वजह यह है कि हम जिस कुर्सी पे बैठ जाते हैं, हमें उस कुर्सी का ठीक से इस्तेमाल करना नहीं आता, हम उस पे बैठ के उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, हम अपनी पब्लिक के लिए कोई भी काम नहीं करते हैं। हर सीट पे बैठने वाला ऑफिसर अगर ईमानदार हो जाए या वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे तो ये मसाइल बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। जी नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस एंड प्लानिंग यहाँ पर मौजूद हैं। हम उन्हीं से पूछेंगे कि जिस तरह के मानसरा में वर्क हो रहा है या जिस तरह क्वालिटीज़ चेक होती हैं या फाइनेंस के हवाले से, वो खुद ही बताएंगी कि ओवरऑल मानसरा में क्या सूरत हाल है। जी मैम। अस्सलाम वालेकुम। ऐसा है कि हम लोग मानसरा में बहुत से प्रोग्राम्स के अंडर जो है वो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जिसमें गवर्नमेंट लेवल पर भी 2 तरह से फंडिंग हो जाती है, प्रोविंशियल लेवल से और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स होती हैं। तो इन दोनों को मैं सुपरवाइज़ कर रही होती हूँ। इसके अलावा प्रोविंशियल गवर्नमेंट से जितने भी डेवलपमेंटल स्कीम्स चल रही होती हैं उनको भी हम सुपरवाइज़ करते हैं। हमारी कमिश्नर ऑफिस में भी एक टीम होती है जो कि मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन कर रही होती है। हमारे अपने डिपार्टमेंट्स में इंजीनियर्स होते हैं जिनको हम साथ में असिस्टेंस के लिए रखते हैं। तो जितनी भी डेवलपमेंटल स्कीम्स हैं उनमें डिस्प्यूट्स वगैरह जहाँ पर आ जाते हैं, बहुत से सालों से स्कीम्स जो हैं वो पेंडिंग चल रही होती हैं, उनका हम सॉर्ट आउट करते हैं कि उसके जो इश्यूज़ हैं, बिटवीन पार्टीज़ भी इश्यूज़ होते हैं, बिटवीन डिपार्टमेंट्स इश्यूज़ होते हैं, कुछ NOCs होती हैं, कहीं पे पेस्को इन्वॉल्व होता है, कहीं पे SNGPL की लाइंस होती हैं। तो ये इतनी कॉम्प्लेक्स टाइप एक्टिविटीज़ होती हैं, तो वो सारी मैं टेक केयर करती हूँ। तो
अभी हम लोग चूँकि मानसेरा में काफ़ी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ चल रही हैं, आपने देखा होगा मैं एक ब्यूटिफिकेशन स्कीम सुपरवाइज़ कर रही हूँ जिसमें मानसेरा की ब्यूटिफिकेशन के ऊपर हम काम कर रहे हैं। डिफरेंट रोड्स हमने उनकी टॉपिंग की है, हमने उस पर काफ़ी काम किया है। चूँकि यहाँ का टेरेन ऐसा है, यहाँ का इन्वायरमेंट ऐसा है कि वहाँ पे हमें टाइमिंग और वो ट्रैफिक इन सब चीज़ों को देखना पड़ता है, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम इम्प्रूवमेंट आएगी और हम इस पे अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें। अच्छा मैडम, जिस तरह आपने बात की, यहाँ पर अक्सर जो स्कूल्स बन रहे होते हैं, कुछ जॉब चेकिंग ज़ाहिर बात होती है, लेकिन कंप्लेन आती है कि वहाँ पर नाकस मटेरियल यूज़ होते हैं, तो उस पर क्या एक्शन लेते हैं आप? अगर कोई ऐसा कोई कंप्लेन करना चाहे, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जहाँ पर कोई वर्क हो रहा है उस पर क्वालिटी में इशू आ रहा है या उनको क्या कंप्लेन है, तो उसको आप कैसे, उनको क्या मैसेज है कि वो आपसे कैसे रब्ता करें और काम को कैसे रोका जाए? अच्छा, एजुकेशन लेवल, एजुकेशन के या किसी भी डिपार्टमेंट में जहाँ पे भी हमारी स्कीम चल रही होती है, डेवलपमेंटल एक्टिविटी चल रही होती है, तो वहाँ का जो कंसर्न हेड होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो हमें अप्रोच करता है। जब चूँकि मेरा काम ही डेवलपमेंट से है, तो इस टाइप की जो ड्यूरिंग एक्टिविटी है मैं उसको मॉनिटर करती हूँ, मेरी टीम्स जाती हैं, हम किसी न किसी एग्जीक्यूटिंग एजेंसी को थर्ड पार्टी वैलिडेशन के लिए भेज देते हैं, या हमें ख़ुद इस टाइप की रिपोर्ट आ जाती है तो हम वहाँ पर अपनी एक तो पहले हम ये कोशिश करते हैं कि अपने सब इंजीनियर्स को इन्वॉल्व करके उसको रेक्टिफाई करें, क्योंकि इतना आसान नहीं होता कि आप टेंडर कर लें और फिर उसके ऊपर कॉन्ट्रैक्टर आ जाए, काम शुरू कर ले, तो आपको उसकी मिड कोर्स करेक्शन करनी होती है। अगर वो फिर भी ये सॉर्ट आउट ना हो तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि हम उस कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकलिस्ट कर देते हैं। तो मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर एक एक्शन ले लिया हुआ है, और जितने भी टाइम लैप्स जिन प्रोजेक्ट्स में हो चुका है और जहाँ पर भी इस टाइप की चीज़ें जो कि मटेरियल से, क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ हुई हैं, तो वहाँ पर हम उनको ब्लैकलिस्ट भी कर रहे हैं। जी नाज़रीन, जिस तरह के हवाले हज़ारा के प्रोग्राम में हमने मानसेरा की यहाँ पे आवाम से बात की, इस तरह जो मसाइल भी बात हुई, लेकिन लॉ एंड आर्डर जिस तरह के यहाँ पर DPO मानसेरा भी हमारे साथ मौजूद है, शहजाद साहब, उनसे भी हम ओवरऑल जितनी भी यहाँ पर क्राइम रेशो के हवाले से ओवरऑल जो जब यहाँ पर आए तो कैसे देखते हैं मानसेरा में क्राइम की रेशो, जिस तरह कब्ज़ा माफिया और उन पर भी कार्रवाइयाँ हुई। इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ वाक़यात हुए जिनकी FIRs तब भी होगी, लेकिन मुलज़मान अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए, उस हवाले से भी हम DPO साहब से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? बिल्कुल खैरियत। सर, आपका यहाँ पर अभी तकरीबन रिसेंटली कुछ टाइम हुआ, इससे पहले भी यहाँ पर जो है काफ़ी, जो अगर मैं क्राइम की बात करूँ तो यहाँ पर हमने देखा कि कुछ मुलज़मान अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए, कुछ केसेस ऐसे हैं। तो ओवरऑल SHO भी यहाँ पर अभी आपने तबादले भी किए, आपने मीटिंग्स भी की, लेकिन आप आए हैं तो कैसे देखते हैं मानसेरा के? थैंक यू वेरी मच। मेरे कोई 1.5 महीने यहाँ पे टाइम हो गया है, और केसेस ज़ाहिर है कि एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, केसेस हुए होंगे और बहुत सारे केसेस में मुलज़मान अरेस्ट भी हो चुके होंगे। जितने भी मेरे ख़्याल में मानसेरा में इम्पोर्टेंट केसेस थे, हीनियस केसेस थे, वो सारे वर्कआउट हुए हैं। कोई इस तरह के आउटस्टैंडिंग केसेस नहीं जिसमें मुलज़मान अरेस्ट नहीं हुए। एक आध अगर इस तरह है तो उस पर हम फोकस करेंगे। बाकी मानसेरा में जो क्राइम पैटर्न है वो यहाँ पे लैंड के इशू बहुत ज़्यादा है, और वक्त के साथ साथ चूँकि ज़मीनें कीमती हो गई तो CPEC प्रोजेक्ट भी आ गया, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स आ गए, जिसकी वजह से यहाँ पे ज़मीनें कीमती हो गई और लोगों ने इस तरफ वो रुख कर लिया। कोहिस्तान में 10 डैम बन गया, उधर से कुछ जो डिस्प्लेस लोग थे वो इधर आ गए। तो इन सारी चीज़ों की वजह से वो क्राइम का पैटर्न वो थोड़ा चेंज हो जाता है। और बाज़ लैंड प्रॉपर्टी डीलर जो हैं वो कन्वर्ट हो गए लैंड माफिया में, तो ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करना बड़ा ज़रूरी था। उसमें हमने बड़ा अच्छा एक कैंपेन स्टार्ट किया है। अभी तक कोई 5-6 बड़े इस तरह के क्रिमिनल जो लैंड ग्रैबिंग वाले गैंग्स हैं वो हमने अरेस्ट किए हैं, और लोगों की जो ज़मीनें हैं, शरीफ लोगों की, बेवाओं की, ख़वातीन की, वो हमने उनसे रिकवर किए, रिट्रीव किए हैं। साथ साथ हम नारकोटिक्स पे भी हम कोशिश करें कि कार्रवाइयाँ करें। नारकोटिक्स में फिर हमारा फोकस होता है जो सप्लायर्स हैं, जो स्मगलर्स हैं, जो डीलर्स हैं, वो एक सप्लाई चेन जो बनती है उसको हम कट ऑफ कर लें, वो हमारा एक फोकस है। हमने काफ़ी कार्रवाइयाँ भी की हैं, और साथ साथ सूद अंडर प्ले के भी इस तरह के लोग होते हैं, वो भी हमने लिस्टें बनाई हुई हैं। इंशाल्लाह हम उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई करेंगे।
بالکل سر، جس طرح ابھی لینڈ مافیا کی آپ نے بات کی، بالکل بہت کروائیاں ہوئی ہم نے بھی دیکھا، لیکن سر ہم نے ابھی عوام سے بھی بات کی، انہوں نے کچھ کیسز کا کہا 6 ماہ قبل کلندر آباد میں دن دہاڑے نوجوان کو قتل کیا گیا، اس طرح یہاں پر جو ہے غازی کوٹ جو ہے پانو ڈھیری کے میں وہاں پر فائرنگ ہوئی گھر پر، اس کے FIR بھی ہے، تو اس کے ملزمان بھی ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے۔ اسی طرح چند روز قبل بیدرا میں جو گرینیڈ، وہاں پہ جانی نقصان تو نہیں ہوا لیکن وہاں بھی ابھی تک ملزمان گرفتار نہیں ہوئے، تو SHO صاحبان بھی تبدیل ہو چکے ہیں مختلف جگہوں پر، تو اس حوالے سے میں آپ کے نوٹس میں ہے اس وقت؟ جی بالکل، یہ سارے کیسز میرے نوٹس میں ہیں۔ جو ہینڈ گرینیڈ والا انسیڈنٹ آپ بتا رہے ہیں تو اس میں ہاں پانو ڈیری میں مجھے علاقے کا زیادہ پتہ نہیں، لیکن ہینڈ گرینیڈ اٹیک ہوا تھا ایک گھر پہ، وہ آلریڈی ٹریس ہو چکا ہے، ملزمان معلوم ہے، اور جو مدعی ہے وہ بھی کنونس ہے، اس نے باقاعدہ دعوے داری بھی کی ہے، وہ بہت جلد گرفتار ہو جائیں گے۔ اور باقی غازی کورٹ میں یا رائٹ لیفٹ پہ ایک آدھ اگر اس طرح کا کوئی کیس ہے تو انشاءاللہ ہم اس کو بہت جلد جو ہے وہ ورک آؤٹ کر لیں گے۔ اچھا سر، آپ آئے ہیں مانسہرہ بھی، آپ کتنا تھوڑا ٹائم ہوا، تو کس طرح دیکھتے ہیں کون سے کرائم یہاں پر زیادہ ہیں، مطلب آپ کی نظر میں؟ کرائم جو ہے وہ یہاں پہ لینڈ گریبنگ بہت زیادہ ہے، اور اس کے علاوہ ہماری جو وومن فوک ہیں ان کو کافی مسائل درپیش ہیں، ان کے حوالے سے کیسز بہت زیادہ ہیں، اور اسی حوالے سے یہاں ایک بڑا اچھا پروگرام تھا کہ جو ہماری وومن فوک ہے، جو ہماری خواتین ہیں، ان کو لیگل رائٹس جو ہیں اس کے حوالے سے ایک اویئرنیس پروگرام تھا۔ یہ اور ظاہر ہے کہ تھوڑے بہت لوگوں کی دشمنیاں جو ہوتی ہیں اس میں بھی قتل مقاتلے کے وہ انسیڈنٹس ہوتے ہیں، تو اس کے لیے ہمارا جو فوکس ہے وہ ہم جو DRC ہمارا ایک فورم ہے، ہم لوگوں کو انکریج کرتے ہیں کہ اپنے جو ڈسپیوٹس ہیں وہ DRC کے ذریعے حل کریں۔ ظاہر ہے کہ یہ جو سول ڈسپیوٹس ہوتے ہیں اسی سے کرمنل کیسز بنتے ہیں، تو ہمارا فوکس ہے کہ اپنے DRC کو زیادہ فعال بنائیں تاکہ یہ مسئلے کم ہوں۔ جی ناظرین، بالکل جس طرح کہ ہم نے آج مانسہرہ میں مختلف جگہوں پر ہم گئے، ہمارے ساتھ DPO مانسہرہ بھی موجود تھے، جس طرح کرائم کے حوالے سے یہ کچھ واقعات ہوئے، عوام نے بھی ہمیں بتایا، جس طرح ہم نے ان کے نوٹس پہ بھی لایا تو انہوں نے کہا کہ کچھ جو واقعات ہیں اس میں تو ٹریس آؤٹ ہو چکے ہیں، لیکن مزید جہاں پر جن FIRs ہوئی ہیں لیکن ملزمان گرفتار نہیں ہوئے ان کو بھی دیکھا جائے گا۔ جس طرح آج کے پروگرام میں ہمارا مقصد یہی تھا کہ ہم مانسہرہ میں جس طرح کے بنیادی مسائل پہ ہم نے بات کی، اس طرح جس طرح DPO صاحب نے بھی یہاں پر جو کرائم کے حوالے سے بھی انہوں نے بتایا کہ ہم کام کر رہے ہیں، لیکن عوام کو جو ریلیف ہے، جس طرح کہ یہاں پر ابھی ریسنٹلی ایک پروگرام بھی ہوا، اس میں انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ اگر چاہے وہ خواتین ہیں، چاہے کوئی بھی کسی قسم کا ایشو ہو تو وہ ہمارے آفیسز میں ہر ٹائم آپ کے اپنی کمپلین کروا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہونے جا رہا ہے، اگلے پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اپنے میزبان مہر سیما کو اجازت دے، دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔